Good evening, everybody. After amines, our next lesson is the biomolecules. Now, name itself indicates biomolecules related to biology. We see here body of living organism, which consists of many material and that consists of different molecules. These different molecules constitute their part, different body part, and they are very essential for them. And then it also takes place in the various physiological processes. Then complex organic molecules which form the basis of life. ये मतलब क्या है तो एक्चुअली दे आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं, लार्ज टाइप के होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैक्रो, नॉट माइक्रो, इट्स मैक्रो. So they are macromolecules and they are complex molecule also, and which are the basis of life. They form basis of life. That means they are used for building up living organism, which required for proper growth and maintenance of life. So that is one important part. And it includes carbohydrate, protein, fat, lipid, enzymes, nucleic acid, and etc. Vitamins, hormones like this. So they are called as biomolecules. मेजर इंपॉर्टेंट अगर देखते हैं इस चैप्टर में अपने को आने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. कार्बोहाइड्रेट, as we know, plant produce their food by the process of photosynthesis. That means carbohydrate produced by plants. Then plants absorb minerals from the root and they produce the proteins. Then lipids are the main ingredients of the vegetable oil as well as the milk fat. Then nucleic acid constitute the genetic material. They are important for the transformation of characters, genetic character from one to another generation. So these are certain biomolecules. So first part of biomolecule is carbohydrate. What is meant by carbohydrate? Carbohydrates क्या है? Carbohydrates are the compounds containing carbon, hydrogen and oxygen as a constituent element. इनमें तीन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनके अलावा चौथा एलिमेंट नहीं है, बस तीन ही एलिमेंट प्रेजेंट है. दे आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. देन दे आर कंसीडर्ड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इनको क्या बोला जाता है एक्चुअली? तो हाइड्रेट. हाइड्रेट मतलब क्या? तो वाटर. यस, H2O. Hydrates of carbon. That's why they are represented by formula CxH2O by Y. That means proportion of hydrogen is to oxygen is 2:1. हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन के नंबर 1, मतलब proportion of hydrogen is to oxygen is always 2:1, and that's why they are represented by formula CxH2O by Y. This is general formula for carbohydrate. For example, glucose formula is C6H12O6. ये फॉर्मेट में अपन कैसा लिख सकते हैं? तो C6H2O/6, C6H2O/6. H2O/6 मतलब ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 जो ऑलरेडी दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 2 × 6 हो जाएंगे 12, तो कार्बन तो ऑलरेडी 6 है, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम ही है. फॉर्मेट में अपन इस तरीके से लिख लिया इसको. देन सुक्रोज. सुक्रोज जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? सुक्रोज. यस, सुक्रोज, cane sugar. So sucrose C12H22O11. Having formula can be written like this: C12H2O/11. Again C12H11 × 2, that means 22. Oxygen 1 × 11, that means 11. So like this, start having formula C6H10O5/N. C6H2O/5N. C6H2O/5N. So in this way they are represented. But all compounds following this formula are not carbohydrates. For example, acetic acid CH3COOH. So molecular formula is C2H4O2. We may write C2H2O/2. But this is acid and this is not the example of a carbohydrate. That means the compound which are represented by this formula, they are not considered as the biomolecules. Exceptional case or one example is acetic acid, or sometimes they are carbohydrate but they do not obey that formula. For example, rhamnose. Rhamnose having formula C6H12O5. इसको अपन ये फॉर्मेट में नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि C6H2O/5 अगर करता हूं मैं तो ये बैलेंस नहीं हो जाएंगे. मतलब क्या है? तो C6H10O5 ये एक एक्सेप्शनल केस है जो ये फॉर्मूला में नहीं बैठता, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट है रैमनोज. इधर एसिटिक एसिड फॉर्मूले में बैठता है बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दे रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज दिस CxH2O/Y. दिस इज रिप्रेजेंटेशन. देन सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट and that's why they are called as sugar.
example glucose, fructose, etc. Fruit sugar is called as fructose. Then most commonly used sugar is the sucrose, which is obtained from the sugar cane और sugar beet से जो मिलती है. And sugar present in the milk is called as the lactose. Milk में जो present होती है sugar, that is called as lactose. Greek word for sugar is saccharine. यहाँ से word आया है saccharine से saccharides. Hence carbohydrates are called as the saccharides. Carbohydrate जनरली सैक्राइड्स के फॉर्म में गिने जाते हैं, थोड़ा वो स्वीट टेस्ट बताते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द सैक्राइड्स. देन व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये बोला जाता है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉली मींस क्या? तो मेनी. हाइड्रोक्सी तीन से ज्यादा वो एक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है. देन दे कंटेन इधर अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप. इनमें भी दो है, या तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या तो कीटोनिक. एंड दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, पॉलीहाइड्रोक्सी के बाद में वो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, और जिसका हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं, मतलब वाटर की एडिशन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, दे प्रोड्यूस सेम कंपाउंड. मतलब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करने से कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं. बड़े कार्बोहाइड्रेट से छोटे कार्बोहाइड्रेट, जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है. दैट मीन्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे किया गया फिर? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव सेम कंपाउंड. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स सेम कंपाउंड. इनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में सेम कंपाउंड फॉर्म होते हैं. सो ऐसे है कार्बोहाइड्रेट्स. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharide. As I told you earlier, saccharide means sugar, monosaccharide, mono means one. ये सिंगल वाले मॉलिक्यूल है. They are the basic units of carbohydrates and they do not undergo hydrolysis. मतलब मोनोसैक्राइड के बारे में क्या बोला जाता है? तो मोनोसैक्राइड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है बिकॉज दे आर द जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें दो टाइप आते हैं, अल्डोजेस एंड कीटोजेस. सपोज मोनोसैक्राइड है और अल्डिहाइड ग्रुप. अभी जैसे बताया मैंने कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव सेम कंपाउंड. तो अल्डिहाइड अगर है तो वो अल्डोजेस है, और कीटोन अगर है तो वो कीटोजेस में है. मतलब मोनोसैक्राइड में दो टाइप है, अल्डोजेस एंड कीटोजेस. मोनोसैक्राइड कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एज अल्डोजेस, एग्जांपल ग्लूकोज. मोनोसैक्राइड कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटोजेस, एग्जांपल फ्रुक्टोज. देन मोनोसैक्राइड्स मतलब क्या है? व्हाट आर मोनोसैक्राइड? डिफाइन मोनोसैक्राइड. तो दे आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. देन सेकंड पार्ट इज ओलिगोसैक्राइड. ओलिगो, अगेन ओलिगो का मतलब होता है फिक्स, डेफिनाइट. फिक्स और डेफिनाइट. So oligosaccharides are the carbohydrates which on hydrolysis gives fixed number